So hi everyone. In this video, I'm going to teach you about Palo Alto Firewall and their functions. Okay. Already हम लोगों ने Palo Alto Firewall पर 7 सेशन complete कर रखा है. But yes, now we are going to discuss about the Palo Alto Firewall ports and their functions. Okay, because it is very important to understand the port functionality. Okay, so port, different types of port available on Palo Alto Firewall according to model number. Okay, you can see this is the PA220, and as per this there is a limited port number, there is one USB port. So we need to know that what is the function, what are the uses of this USB port, what about a USB console port, what about this console port, what about management port or interface. Okay, or what about these all ports. सो ये सभी जानकारी हमें अच्छे से होना चाहिए. एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप एक अलग Palo Alto फायरवॉल की सीरीज लेते हो, सो देर आर अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक interfaces or ports. Okay, so let me show. For example, this is the port, this is the firewall, or you can just explore some more firewall. You can see यहाँ पर भी एक Palo Alto firewall है 220 का, and this is I think 850 Palo Alto firewall. Okay, and this is another Palo Alto firewall which is next gen firewall, and there is a multiple USB port, console port and other things. Okay, so it is like very important to know कि जो भी हमारे Palo Alto firewall के पोर्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका कैसे इस्तेमाल और सारी चीज़ें करना है. राइट. For example, this Palo Alto firewall, this is the Palo Alto firewall with 220, and there are the limited feature, okay, or limited port. So you can see these are the interface ports. Okay, ये सभी हमारे क्या हैं, ये interface port हैं. Let me zoom it little bit. Okay, let me zoom it. Now you can see like this. Okay, simple. This is the Palo Alto firewall ports. Okay, so this is port 1, this is port 2, this is port 3, this is port 4 and 5, 6, 7, 8. So there is total 4 LAN interface. Okay, so we can connect this is the Ethernet port, basically Ethernet port. Okay, so we can connect our PC, our switches, okay, or server, and also we can establish WAN interface, means ISP connection through these ports. Okay, तो इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोकल एरिया के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, और ऑल्सो वी कैन यूज़ द पोर्ट फॉर WAN एरिया ट्रैफिक. ओके, बेसिकली वी कैन यूज़ दीज पोर्ट्स फॉर डेटा ट्रैफिक. जो भी हम डेटा ट्रैफिक सेंड करना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम LAN टू WAN और WAN टू LAN, ये इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. अंडरस्टूड है. And another, there is management port. So there is limited or specific feature for management port. Okay, and the management port is only for GUI access. Okay, or to manage this firewall. This port basically used to manage this firewall using graphical user interface. Or there are another different types of console which we can enable to manage this firewall. Okay, so also we can manage SSH telnet through this port. Okay, so I'll explain everything कि मैनेजमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल और किन सारे पॉइंट्स के लिए किया जा सकता है इन Palo Alto firewall. And this is console port. Basically you can use this console port to access this firewall using command line interface. Okay, using Putty software. As we know that Putty software is a tool or application which we can use to access the devices using console port. Okay, Putty is used to access the device using CLI. Putty is used to this application used to access the device through telnet, through SSH. Okay, but yes, console port directly we can use to access this device without any IP address. There is no need to configuration any IP. No IP required for this port. Okay, directly you can just connect your serial port or console port. Okay, there is dedicated console cable. Let me show. This is basically console cable. Okay, this is the console cable.
So this cable directly you can use, okay, to connect this device. Okay, this port you can connect with your laptop, and this port you can connect with the console port, and you can directly access this device, this Palo Alto, through your laptop or desktop, okay, or any other device, okay, जिस पर भी हम लोग CLI access लेना चाहते हैं. And also this is the another port which is used to access the device using CLI. okay, so both are same, दोनों एक ही काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि दोनों डिवाइसेस, दोनों पोर्ट को हम CLI एक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड देर इज़ अनदर पोर्ट विच इज़ USB पोर्ट बेसिकली, एंड USB पोर्ट इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर फॉर बैकअप, लॉग, OS installation and many other things, okay, for upgradation, okay. And for example, if you want to copy paste the log, detail backup files and many other things, so you can do, you can basically share the data, okay, you can upload download data or copy paste data through this USB port, okay. तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं. And yes, there is another like indication like high availability indication, है ना, stat indication, alarm indication, temperature and power, okay. So as per indicator we can just understand कि specific जो भी function है हमारा वो proper work कर रहा है. So green indication means everything is like fine, everything is perfect, okay. And whenever there is any like रेडिस टाइप ऑफ इंडिकेशन मीन्स जब भी हमारा कोई रेड अलर्ट हमें देखने को मिलता है तो ग्रीन जो सिग्नल होता है ये हट जाता है. तो टेम्परेचर वगैरह सब कुछ ओके है, पावर सप्लाई ओके है, एंड अलार्म एवरीथिंग सब कुछ ओके है. ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इंडिकेशन से या इस इंडिकेटर की वजह से, LED इंडिकेशन इसको बोल सकते हैं, LED इंडिकेटर बोल सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम देख पाते हैं. बाकी यहाँ पर फ़ैन और सारी चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पर एक मिनिमम इंटरफेस और सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. अभी मैं इस मैनेजमेंट इंटरफेस को प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि हाउ टू मैनेज दिस इंटरफेस एंड हाउ टू लाइक यूज़ द मैनेजमेंट इंटरफेस टू कॉन्फ़िगर द like management traffic basically, okay. Let me show, this is another Palo Alto firewall, and let me open this firewall, okay, and let me zoom it. Yeah, this one, okay. So you can see this is the Palo Alto firewall, and there is different types of there is another different ports. कुछ यहाँ पर नए ports हमें देखने को मिलते हैं. So we can just acknowledge these ports, okay. Like you can see this port is like this is the PA850, and these are the LAN port, okay. These are the LAN ports. So we can use this port for LAN and WAN connectivity. And yes, there is some like SFP ports, okay. These are the SFP port we can use for similar like Ethernet port, but these ports have highest bandwidth, okay. ये high speed connectivity और लेटेंसी बिल्कुल माइनस करके या बिल्कुल जीरो लेटेंसी के साथ डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है. मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसफ़र हाई स्पीड डेटा, हाई स्पीड connectivity you want to establish, then you can use SFP ports. And yes, there is HA1 and HA2. This is HA1 means high availability, HA1 and HA2. So if you want to configure HA means high availability, you can use these ports, okay. For example, if you have another Palo Alto firewall, like एक और हमारे पास अगर PA850 है, और जब भी हम हाई अवेलेबिलिटी कन्फिगर करना चाहते हैं तो मैं HA पोर्ट्स के थ्रू अनदर फायरवॉल को कनेक्ट करके ये कन्फिगर कर सकता हूँ, ओके. तो यहाँ पर दो पोर्ट देने का क्या मतलब है, क्योंकि दो तरीके की ट्रैफिक, चाहे वो मैनेजमेंट ट्रैफिक हो या डेटा प्लेन की ट्रैफिक हो या जो भी ऐसा है, वो हम अलग अलग डेटा के लिए अलग हाई अवेलेबिलिटी और मैनेज करने के लिए अलग हाई अवेलेबिलिटी और ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, वॉटेवर, ये सारी चीज़ें. तो अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा टाइप्स ऑफ डेटा प्लेन या मैनेजमेंट प्लेन या कंट्रोल प्लेन के बारे में. बट अभी दो तरीके के हैं न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो हम देख लेंगे. बट इस हाई अवेलेबिलिटी मतलब अगर हम एक और फायरवॉल साथ में कन्फिगर करें
ओके तो हाई अवेलेबिलिटी हम इधर मैनेज कर सकते हैं यूजिंग हाई अवेलेबिलिटी पोर्ट, HA पोर्ट। ओके सो बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी मतलब होता है कि जब भी हमारी एक फायरवॉल या एक हार्डवेयर फेल होता है तो दूसरा वर्क कर रहा होता है, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस टाइप के सिनेरियो के लिए यहाँ पर ये फायरवॉल का पोर्ट दिया हुआ है। अनदर देर इज़ मैनेजमेंट पोर्ट। तो मैनेजमेंट पोर्ट ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इस पोलो अल्टो फायरवॉल को GUI एक्सेस ले पाएँ, टेलनेट SSH कर पाएँ। कंसोल पोर्ट डायरेक्टली हम CLI एक्सेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। USB दिया हुआ है फॉर सेम बैकअप, लॉग, फाइल फोल्डर एंड iOS या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन। कंसोल पोर्ट दोनों का काम सेम होता है। यहाँ पर LED इंडिकेशन है एंड यस यू कैन सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक फैंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे फैन है। तो फैन का मतलब है कि हमारी डिवाइसेस को कूल करने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। लेट मी शो फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पोलो अल्टो फायरवॉल जो कि ये है, और ये हम लोग इसके बाद मैं आपको कंप्लीट स्टार्ट करूँगा PC NSA का प्रोग्राम जो कि बहुत एडवांस लेवल पर यह पूरा कंप्लीट कवर कराया जाएगा। बट यस दिस इज माय पोलो अल्टो फायरवॉल एंड यू कैन सी I can manage different things. Okay, and there is another point which is device, and through this you can check this is the management interface and this is management level information. Okay, so you can manage the things for this firewall using management interface. Okay, and you can see there is accept DSCP service provided, host name and many other things you can configure as per need and requirement. Okay, तो configuration हम लोग आगे देखेंगे, but यहाँ पर आप interface में आ जाओ and this is the management interface and here you can see this is the MTU, maximum transmission unit, and there is auto negotiation, means this interface will help you to configure the firewall using like speed and duplex configuration. Okay, means this option you can configure about speed, okay, and duplex. There is two configuration with the help of this option. You can control speed and also you can control duplex. Okay, there is two way to transfer the data. Okay, one is half duplex, either you can use full duplex technology. Half duplex means devices can send and receive data, okay, but not simultaneously. In full duplex, devices can send and receive data simultaneously, there is no problem. Okay, this is the main thing or main differences. Okay, right. तो यहाँ पर हमारा ये हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है. समटाइम्स वी नीड टू कन्फिगर हाफ डुप्लेक्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक, ओके, and sometimes we can configure full duplex, and max times we can use full duplex technology. But yes, there is some there is multiple condition to configure the half duplex. Okay, so there is option you can configure this interface as a half duplex or full duplex. Okay, it depends. Now you can see you can control your speed, like this firewall speed or interface speed, means this management interface support 1 Gbps max speed. Okay, so either you can configure 1 Gbps half duplex, full duplex, or you can configure auto negotiate. So auto negotiate mean it depends कि भाई हमारा जो भी एक्सेस करने वाला डिवाइस है वो किस तरीके से यहाँ पर डेटा लेना चाहता है या डेटा को सेंड और रिसीव करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है. तो अगर मैं इसकी लिमिट कर देता हूँ 10 Mbps एंड हाफ डुप्लेक्स, सो एट अ टाइम डिवाइस कैन सेंड और रिसीव डेटा, बट द मैक्सिमम स्पीड विल बी 10 Mbps. ओके, सो बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑटो नेगोशिएट, बिकॉज ये ऑटो नेगोशिएट हमारे कंप्यूटर्स और सारे डिवाइसेस पर बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि ये डिवाइसेस अपने फ्रंट की डिवाइस के साथ ऑटोमेटिक नेगोशिएट कर ले ये किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहता है. द MTU, दिस इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट रेट विच इज़ 1500 बिट्स. ओके, ये आप देख सकते हो. And yes, there is another option which is IPv4 or IPv6. So you can configure like IPv4 or IPv6. Okay, so right now I'm using IPv4 and I'm using DSCP. Okay, so this is the DSCP IP according to my network configuration. So my
like IPs, like IP address of this firewall is 192.168.11.153. Okay, because this is a DSCP given IP address which is 192.168.11.153. Okay, and I can use this firewall using HTTPS or SSH. We can use both HTTP or SSH, and also we can enable HTTP and Telnet. Okay, both are not enabled by default. Why? Because both have plain text communication. ये दोनों हमारे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं है, ये दोनों प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या होता है कि इनक्रिप्शन सपोर्ट करता है, इनक्रिप्शन जो कि हमारा साइफर वैल्यू कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है, विच इज़ बेटर फॉर सिक्योरिटी, है ना। तो ये हमारा इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इनेबल है। और फायरवॉल एक्चुअली एक सिक्योरिटी के लिए डिवाइस है, और वहाँ पर अगर हम लाइक प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, बिकॉज समटाइम्स वी कैन यूज़ मैनेजमेंट इंटरफेस, ओके, मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर WAN connectivity. WAN connectivity, like if someone want to access this firewall from the WAN network, so yes, it is possible, but at that time we need to configure the secure connection to transfer the data securely, to transfer the data in encrypted format. Okay, तो ये बहुत एक एडवांस लेवल का सिक्योरिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अनदर आप इसको इनेबल करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन। एंड देर इज अनदर ऑप्शन लाइक नेटवर्क सर्विसेज, मीन्स व्हाट डू यू वांट टू इनेबल फॉर नेटवर्क सर्विसेज। ओके, इफ यू वांट टू इनेबल पिंग, इफ यू वांट टू इनेबल SNMP to monitor this device or to manage this device using MIB or management information base, so you can। तो आप डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप क्या इनेबल करना चाहते हो, क्या मैनेज करना चाहते हो। यू कैन सी ये हमारी नेटवर्क सर्विसेज हैं विद दिस फायरवॉल। And also there is another option, means if you want to permit a specific IP address to access this firewall, so you can manage through this setting. You can just click on add button and you can add the IP address and you can define the description about the specific IP address कि वो किस लिए है, क्या है। तो this is the just configuration part, आप इसको यहाँ पर add on कर सकते हो। Okay, so this is send host name, send client ID, depend on the client option, and also yes, you can configure static IP address, okay, for management interface. Okay, so you can just click on this option and you can select static, and you can configure any IP address like 192.168.1.1 for example। अगर हमारे नेटवर्क में कोई भी WAN IP कनेक्शन है, कोई भी मान लिया पब्लिक IP है, सो यू कैन असाइन द पब्लिक IP टू एक्सेस दिस फायरवॉल डायरेक्टली फ्रॉम द WAN नेटवर्क, बिकॉज पब्लिक IP अवेलेबल फॉर WAN कनेक्टिविटी। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन एनेबल और यू कैन असाइन एनी LAN IP टू क्रिएट द LAN कनेक्टिविटी। ओके, LAN इन्वायरमेंट में इसका कनेक्शन हो जाएगा और कोई भी LAN कंप्यूटर इसको एक्सेस कर सकता है, जो कि हमारा यहाँ पर DSCP कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके थ्रू जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, तो सिंपल इट डिपेंड्स कि आपको DSCP चाहिए या फिर स्टैटिक चाहिए, वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सिंपल दिस इज IPv6, तो IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एंड देर इज सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन लाइक यू कैन असाइन DSCP और यू कैन असाइन HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, whatever। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। यूजिंग DSCP देर आर अनदर ऑप्शन लाइक नॉन टेम्परेरी एड्रेसेस, टेम्परेरी एड्रेसेस, रैपिड कमिट एंड whatever। आप ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन के साथ कर सकते हो। हालांकि ये सब क्या है ऑप्शंस, ये सब चीज़ें आप इस सीरीज़ के साथ डेफिनेटली सीखोगे, एंजॉय करोगे, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सिंपल दिस इज़ द थिंग्स जो कि आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ओके, एंड यस, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से मैनेजमेंट पे आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ से ये सब ऑप्शन भी मैनेज कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, या जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हो, राइट। तो इनको मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए, या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अनदर वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। बट यस, आपकी सर्विसेज, इंटरफेसेस और सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, कंटेंट ID एंड एवरीथिंग। ओके, एंड यस, द नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखो, हमारा करंट जो एक्सेस है उसके बारे में अपडेट मिल जाता है, लॉग वगैरह बहुत अच्छे से हम इस डिवाइस के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है। करंटली DHCP IP यहाँ पर है और उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। ओके, तो सिंपल हम इसको कॉन्फ़िगर करना और ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम पालो अल्टो फायरवॉल के इन सभी इंटरफेसेस को देखते हैं। और सिंपल मैनेजमेंट केबल यानी कि लैन केबल से अगर हम मैनेजमेंट इंटरफेस को एक्सेस कर लें तो डायरेक्टली वो एक्सेस हो जाता है। कंसोल पोर्ट CLI एक्सेस के लिए हो जाता है और ये सारी चीज़ें। ओके, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम मैनेजमेंट इंटरफेस मैनेजमेंट पोर्ट को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट पोर्ट अगर हम लोग एक्सेस करते हैं, सो यस वी कैन यूज़ HTTPS GUI एक्सेस, इसके थ्रू हम ये मैनेज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन यूज़ CLI एक्सेस, यहाँ से हम लोग CLI एक्सेस भी ले सकते हैं जो कि SSH की कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। एंड देयर इज़ डेडिकेटेड कंसोल पोर्ट फॉर CLI एक्सेस। ओके, बट यस थ्रू मैनेजमेंट पोर्ट वी कैन establish CLI communication, but we need to enable the SSH which provide a secure communication. Okay, and also we can use for monitoring मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ या व्हाट आर द यूसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट इंटरफेस। ओके, पोर्ट। ओके, तो और भी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मॉनिटरिंग लॉगिंग हो गया, प्लस यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट अपडेट के लिए समटाइम्स वी कैन यूज़ फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट इन पालो अल्टो फायरवॉल। तो ये भी हम लोग मैनेजमेंट इंटरफेस के ही थ्रू करते हैं। And yes, sometime we can use content updates. Okay, contents update के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड यस वी कैन यूज़ फॉर SNMP, जो कि इससे पहले आपने अभी देखा था कि वहाँ पर ऑप्शन था SNMP। और SNMP भी हमारा एक तरीके का नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है और डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, डेटाबेस चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर लॉग फॉरवर्डिंग भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। वी कैन मैनेज लॉग फॉरवर्डिंग थ्रू दिस। And also we can manage authentication services. Okay, authentication services like LDAP, and yes we can manage radius or TechX label services, right? TechX plus services or AAA authentication or authentication label services through this. Okay, and also we can use this port for Panorama communication. Yes, we can use for Panorama, which connect multiples of firewall together. Okay, means this is the big environment, means central management of all firewalls we can manage, we can connect through Panorama using this interface. Okay, so basically this particular port or management port doesn't have data forwarding or forward data for user. ओके, देर इज़ नो, मीन्स सिंपल आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट पोर्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो, या मैनेजमेंट पोर्ट कभी भी हम लोग डेटा या यूज़र डेटा फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो इट डज़ नॉट फॉरवर्ड यूज़र डेटा ट्रैफिक। ओके, सिंपल। ओके, तो मैनेजमेंट पोर्ट हमारा इसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए होता है। और इसका लेबल हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर MGT लिखा होता है। MGT का मतलब है मैनेजमेंट इंटरफेस। ओके, ये चीज़ ध्यान देना, MGT जिस इंटरफेस पर लिखा है या जिस पोर्ट के सामने या जिस पोर्ट पर लिखा है वही हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस पोर्ट होता है। ओके, यहाँ पर इस पोर्ट पर हम लोग क्या करते हैं, अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग IP एड्रेस असाइन करते हैं, मास्क असाइन करते हैं और गेटवे असाइन करते हैं और हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। यस, NTP भी यहाँ पर वर्क करता है और एक तरीके का मोस्ट सिक्योर और रिकमेंडेड अप्रोच होता है हमारे इस फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए। ओके, और यस आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर हम इनबाउंड मैनेजमेंट इंटरफेस और डेटा इंटरफेस एज अ मैनेजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। डेटा प्लेन इंटरफेस फॉर मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हो। तो इनबाउंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटबाउंड उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये तो अनदर पार्ट है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। एंड यस, सिंपल आप अपने फायरवॉल को, अगर आपके पास EVE-NG के अंदर फायरवॉल है, अगर आपके पास GNS के अंदर फायरवॉल है, कहीं पर भी फायरवॉल है,
या आपने डायरेक्ट PAVM इस्तेमाल किया तो उसको जस्ट आप एग्जीक्यूट करो और मैनेजमेंट इंटरफेस हमारा एक्टिवेट होगा जब भी हम लैन इंटरफेस कनेक्टिविटीज़ को देंगे, और बस एक IP एड्रेस देकर हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें CLI एक्सेस लेना होता है ताकि हम कमांड लाइन इंटरफेस कर पाएँ, बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू कन्फिगर एनी IP एड्रेस। तो CLI एक्सेस के बाद जो भी कन्फिग्रेशन करना है वो चीज़ आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि हम लोग इस पोलो ऑल्टो फायरवॉल को SSH एक्सेस भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी इनेबल है। तो SSH एक्सेस भी मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू मैं जिस मशीन के साथ कनेक्टेड हूँ या नेटवर्क में कहीं पर भी हूँ तो मैं SSH एक्सेस ले सकता हूँ। और मेरा जो IP एड्रेस है 192.168.11.153 है, तो मैं यहाँ पर पुट्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूँगा और उसके थ्रू SSH एक्सेस मैं ले सकता हूँ। सो लेट मी ओपन पुट्टी सॉफ्टवेयर लाइक दिस, पुट्टी, ओके, दिस वन पुट्टी सॉफ्टवेयर आप जस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से और इजीली ये डाउनलोड हो जाता है। ओके, और उसके बाद आप जस्ट इसको ओपन करेंगे एंड यस यू कैन सी दिस इज पुट्टी सॉफ्टवेयर। और फाइनली मैं यहाँ पर अपने फायरवॉल का IP दूंगा 11.153, और चूंकि मैं फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे पोर्ट वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा। ओके करेंगे और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। तो कह रहा है कि स्पेसिफिक जो भी हमारा 192.168.11.153 है पोर्ट 22 के साथ यहाँ पर है, यू हैव नो गारंटी दैट द सर्विस इज दिस सर्विस सर्वर इज द कंप्यूटर यू थिंक इट इज द सर्वर। सिंपल यहाँ पर कह रहा है कि देर इज़ RSA 2 लाइक इंक्रिप्शन सिक्योरिटी। ओके, और RSA का जो हमारा SSH RSA 2048 का इंक्रिप्शन और ये सारी चीज़ें, और ये सब कुछ जब हम SSH इंक्रिप्शन करते हैं तो एक कीज़न होता है, एक समझ लो कि एक तरीके का सिक्योरिटी की जनरेट होता है और उसको ये एक्सेप्ट करता है, और फिर एक प्रॉपर लाइक कम्युनिकेशन हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पॉसिबल होता है। तो सिंपल उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, और जस्ट यहाँ पर आप अपना लॉगिन करेंगे, जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर दोगे। आई थिंक मेरा पासवर्ड यही है, हाँ ठीक है, ये पासवर्ड है। सो यू कैन टाइप अदर डिटेल लाइक सो स्पेस इंटरफेस स्पेस ऑल एंड एंटर, जो भी आपके डिवाइस पर इंटरफेस की डिटेल है वो आपको मिल जाएगा, है ना, जो भी डिटेल्स है। सो इंटरफेस स्पेस मैनेजमेंट डाल के आप चेक कर लो तो मैनेजमेंट की IP और क्या है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, सो स्पेस इंटरफेस स्पेस जस्ट क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो, तो यहाँ पर ऑल हार्डवेयर लोकल मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ऑल पर हमें अपडेट अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, जस्ट यहाँ से 0 अपडेट के साथ है। तो वी नीड टू इनेबल दी इंटरफेसेस और सब कुछ और भी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। सो स्पेस लाइक सिस्टम एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इसका स्टैट देखना चाहते हैं, रिसोर्सेज देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, फाइल्स देखना चाहते हैं, जो भी है तो हम देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हो, आपको ये VM के बारे में अपडेट दे रहा है, इसका वर्जन, अदर डिटेल्स, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यस, ये कुछ हम अपडेट और सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, तो बस हम SSH का भी एक्सेस इसी तरीके से कर लेते हैं, बहुत कुछ यूनिक वे नहीं होता है, जस्ट हम मैनेजमेंट पर जो भी हमारी IP है उसी से हमारा SSH एक्सेस और सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। लॉग मॉनिटरिंग और ये सब भी इनेबल करना है, तो फर्दर अभी हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिसेस करेंगे। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, सारे अपडेट आपको मिलेंगे, रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ अपलोड होते हैं। हर वीडियो को देखने की कोशिश करो जब भी समय मिलता है, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, और डेफिनेटली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।